So today's workshop is about graphical abstracts, and in this workshop, we will get a know-how about BioRender and PowerPoint. This workshop will be done in two parts. One will be held today, which is on BioRender and PowerPoint. Another part will be held on next Saturday, inshallah. That will cover Illustrator, Adobe Illustrator. So, let's start with knowing what a graphical abstract is. So, what is a graphical abstract? A graphical abstract is a single, concise, pictorial, and visual summary of the main findings of the article. So, if you're writing an article, and whether it is a review article or it is a research paper, and you wish to make a graphical abstract is not very necessary, but it imparts a better impression on the journal and on the readers. So, it should be a summary, a visual summary of the main findings of your article. This could either be the concluding figure from the article or a figure that is specifically designed for the purpose, which captures the content of the article for readers at a single glance. So, for example, if your research is on phylogeny and you have constructed a phylogenetic tree, you can make that phylogenetic tree as your graphical abstract. But if you're writing a review paper, then you have to make a graphical abstract yourself. So what are the requirements for a graphical abstract? A graphical abstract should allow readers to quickly gain an understanding of the main take-home message of the paper, and it is intended to encourage browsing, promote interdisciplinary scholarship, and help readers identify more quickly which papers are most relevant to their research interest. Because when you are, as a researcher, you know that when you are browsing research papers, you have to read the abstract of every paper. So it also consumes a lot of time. If you are given a graphical abstract, you can just look at it and you can tell what is in that paper just by looking at that particular image. Publications. Now, if you are about to publish your article, then there are specific instructions which you have to go through and the specific steps which you have to perform before publishing your article. So the authors, these guidelines have been taken from Elsevier, which is a very famous journal. Most of you would already know about it. So the authors must provide an image that clearly represents the work described in the paper. A key figure from the original paper summarizing the content can also be submitted as a graphical abstract. Again, I'm giving the example of a phylogenetic tree or a flow chart. Graphical abstracts should be submitted as a separate file. This is a very important part because when you are publishing a paper, you have to submit all the figures and graphical abstract in a separate file. So they should be submitted as a separate file in the submission system by selecting the graphical abstract from the drop-down list when you are uploading the files. Specifications, a graphical abstract should be a one-image file. It should visualize one process or make one point clear. Excuse me. Sorry. Okay, so I was saying that it should be a one-image file and it should visualize one process or make one point clear. It should not be confusing. You should not be talking about multiple processes or multiple points. You have to focus on one point, one major point, which is the nutshell of your paper. For ease of browsing, the graphical abstract should have a clear start and end, preferably reading to bottom or left to right. This is the reading of your text. So try to reduce distracting and cluttering elements as much as possible. Font. Now there are 4 types of fonts which are allowed in graphical abstracts. One is Times New Roman, which is a very famous font, and mostly it is the most preferable font. Or you can use Arial or Courier or Symbol. With a large enough font size. This is a large font size should be large. This is also a very important part because your image will be reduced in the size of the table of contents to fit a window of 200 pixels. Further instructions include no additional text, outline, or synopsis. Because this is a graphical abstract, so try to reduce text as much as possible. Any text or label must be a part of the image file. Please do not use unnecessary white space or heading graphical abstract because a graphical abstract should be self-explanatory.
Now I have added some examples of good graphical abstracts. Some are from published articles, some are unpublished. So please do not copy any of the abstract provided over here. These are just for you to get a know-how about good graphical abstract. First is this graphical abstract, which is a very clear and very beautiful image, where you can see that some reaction is taking place and the arrows indicate whatever is happening over here. Next, we have another graphical abstract, which is a very good graphical abstract. They have added the text, which is, the important text has been added and no extra text is written over here. And it is very clear what is happening in this research paper. This is also an example of a graphical abstract. This graphical abstract is this is taken from a review of cheese ripening, and over here you can see glycolysis, proteolysis, lipolysis. These processes are taking place, and this graphical abstract has been made on PowerPoint. Then we over here you can see this graphical abstract. You can say that the research paper is about apoptosis. Another graphical abstract. This graphical abstract has also been made by PowerPoint, and this is a very clear and beautiful image, colorful image, and you can tell whatever is happening over here because they are using some plant extracts, and those extracts have anti-cancer, antiviral activities. This graphical abstract, this is my own graphical abstract, which I made for an assignment of mine. And this was on nanobioremediation, and this was also made on PowerPoint. This was the introduction about graphical abstracts. Now we will get to know how to use how to make graphical abstracts. So over here, I will tell you how to make a graphical abstract. First of all, these are the basics of PowerPoint, basically. If you want to a colored background on your slide, you click on format background. Now, if you want, you can add any color you want. For example, if I want a blue background, mostly the light backgrounds are preferred. Or you can select any color of your choice. If I want a light purple shade, go over here. Okay. Next, you can also add a picture, but a picture is not a very preferable option. And then you have this smart art, which you can use in your graphical abstracts. Anything like this. You can change the colors from here. Is the screen visible to you? Yes, it's visible. Yes, it's visible now. So I didn't know the screen wasn't visible before. I guess I have to start from the scratch then. Okay, so you right click on the slide, then you go to format background. All right. From here, you can choose the color, any color you want. If you want white, it's fine. If you want gray, blue, or if you want any custom color. For example, if I want a light purple, so I just click on purple and then I go to more colors. Now I can choose any shade that I want. If I want a more pinkish shade, I can go over here. All right. So next you have this smart art option. Now these are the type of smart arts which are already present. These are the ready-made templates
process list. You can, if I want to have a process, I can show it like this. I can change the colors according to my choice. You see? And if I want to add any image or symbol, for example, if I want a tree, so go over here and I type tree vector. Now this is a tree which I used in my graphical abstract. So I'm going to save this image on my desktop. I will drag the image to my slide. Now you can see this image has a background. We have to remove the background. So this is an option on the top left corner, remove background. This is a very easy tool to use. See how the background has been removed, and I can use this tree over here. Now if I want any arrow, I can make the arrow, then I can change the colors by shape fill. I don't want any outline, or if I do, I want a black outline. See? Now if I want any bacteria, so I just go and type bacteria vector. For example, I want this bacteria. I just save the image. Bring it here. Again, we have to remove the background. Now you can see that not all the bacteria has been selected, so we can mark the areas which we want to keep. For example, these. You can select the parts which you want to keep. You see? Now this is my bacteria. All right. Now, if you want to add any outline over here, make a box, go to no fill and outline. See, now this is a box. Another thing, if you want to add a box, but you want that your bacteria should be out on it. Now bacteria is being hidden. So you right click and click on send to back. Now you can see your box has been sent to back and your bacteria can be put on front. So using these techniques, you can create beautiful images on PowerPoint. And if there's anything you want to ask or if you want me to repeat, you can tell it to me.
क्वेश्चंस? लास्ट तक रिपीट कीजिएगा काइंडली। No questions? Anyone wants to question Manur? I Kindly have this please. question. I have this question in chat. We sometimes think that plagiarism includes copied diagrams. Yes, we do. Plagiarism is copied diagrams. और वेक्टर्स तो इंटरनेट से लेंगे हमेशा. आइडिया शुड बी आवर ओन. हाँ, वेक्टर्स आप इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है. उसमें आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा कि आपने ये वेक्टर कहाँ से लिए, क्योंकि वो वेक्टर्स नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं. आप वेक्टर्स वहाँ से लें, उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा लें और उसको अपनी जो इमेज है उसके अंदर यूज कर लें आराम से. जो आपने कुछ भी कोई सिंबल यूज करना, कुछ भी यूज करना, आप उसको यूज करें. Which PowerPoint version do you have? I have this. लाइबा पे ले ले, मम्मा कह रही है गंदा सूप. अब ये सारे खराब हो जाते हैं, जूस सारा निकल जाता है इनमें से. नाहिद एक मिनट चुप कर. Can we make a graphical abstract on taxonomic levels? Obviously, you can make it. Yes, you can make a graphical abstract on anything you want. जो भी आपका पेपर है, जिसको आप पब्लिश करना चाह रहे हो और वो जिस चीज के भी ऊपर है, आप उसको यूज कर सकते हैं. आप उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं कुछ भी. ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वही होगा जो आपका पेपर होगा. तो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट से होता है कि इंप्रेशन अच्छा आता है, आपको आगे जाके असाइनमेंट्स ऐसी मिलेंगी, आप ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट बना लें तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि मेरे आए में हैं. एफिशिएंसी मारनी हो तो आप मारें. अगर हमने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में फाइलोजेनेटिक ट्री, इकरा आपका क्वेश्चन आधा आया है, आप दोबारा टाइप कर दें. कैन यू मैम हाँ जी 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 बताएं. मैम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड का बताया, तो अगर वो 2017 हो, 2016 वर्जन हो, किसी में भी ये सब में ऑप्शन होता है? सब में ऑप्शन होता है. ओके थैंक यू. अच्छा, मुझे किसी ने कहा है कि रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दोबारा बताएं. अच्छा देखें, मैं यहाँ पे गई हूँ, ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे लड़की चाहिए एक, ठीक है. मैं गर्ल वेक्टर पे आ गई हूँ. मैं यहाँ से अपनी गर्ल चूज करूँगी कि मैंने कौन सी रखनी है. तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे ये गर्ल चाहिए. मैं इसकी इमेज को सेव किया, ठीक है. इमेज को मैं ड्रैग करके अपनी स्लाइड पर लेकर आती हूँ, ठीक है. ये इमेज है मेरी, इसका हम करेंगे रिमूव बैकग्राउंड. यूजुअली खुद ही सिलेक्ट हो जाता है. अगर नहीं होता तो आप मार्क कर लेते हैं, मार्क एरियाज टू कीप, मार्क एरियाज टू रिमूव. अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे इसके बाल नहीं चाहिए, तो मैं मार्क एरियाज टू रिमूव में आ जाऊंगी. इस पर क्लिक करूंगी, इसके बाल करती जाऊंगी जब तक इसके बाल अनसिलेक्ट नहीं होते. ये देखें अनसिलेक्ट हो गए. ऐसे करूंगी, मेरे पास गंजी बच्ची आ गई है. और अगर मैं कहूँगी नहीं हो बैक जाना से कंट्रोल सी करके वापस पीछे आके मार्क एरियाज टू कीप में आ जाऊंगी या डिलीट मार्क में आ जाऊंगी, तो मैं अपने ये मार्क्स जो है मेरे फजूल इनको डिलीट कर दूंगी, तो फिर उसके बाल सिलेक्ट हो जाएंगे. ऐसे फिर मैं बाहर क्लिक करूंगी तो ये बच्ची आ जाएगी मेरे पास. फिर मैं इसको रीसाइज कर दूंगी. आप जब अपनी प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर भी इस तरह यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है. प्रेफर यही होता है कि आप जो इमेज है वो उसको इसी तरह यूज करो. वो अच्छा नहीं लगता जिस तरह बैकग्राउंड आया हो साथ और आपकी उसका मैच नहीं करा होता टाइल के साथ. अच्छा, और कोई क्वेश्चन? कैन वी यूज Adobe for Adobe Illustrator for? Obviously you can use Adobe. Illustrator की वर्कशॉप दूंगी, नेक्स्ट वीक होगी. कोकब इंशाल्लाह उसको होस्ट करेगा, वो वर्कशॉप होगी नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम पे होगी. और आज हम ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे और यूजिंग पावर पॉइंट और बायो रेंडर. और कोई पावर पॉइंट का सवाल है तो पूछ लें. रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर करूँगी. ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये आप लोग अपनी आम जब प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं तो आप उसमें भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करें तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है. इसके अलावा GIFs यूज़ करें.
अपनी जो आम प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके अंदर। अनूर काइंडली आप प्लीज़ ये शेयर करें कि एक स्लाइड के ऊपर कितनी पिक्चर्स मिनिमम अलाउड होती हैं, और दूसरा ये कि हमने पिक्चर्स की ओरिएंटेशन और डायमेंशंस को किस तरीके से कंट्रोल करना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर डिज़ाइन में आए, आपको अगर A4, यहाँ पे स्लाइड साइज का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आपको A4 चाहिए, आप इधर कस्टम में जाएं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं A3, A4, ये सारे होते हैं ऑप्शंस। तो आप इसको क्लिक कर लें, लेटर पेपर वगैरह, ये आपको जो जर्नल होता है ना उसकी गाइडलाइंस में उन्होंने बताया होता है कि हमें किस तरह की चाहिए, अगर हमें स्क्वायर चाहिए, इस तरह चाहिए, उस तरह चाहिए। इसके अलावा अगर ये भी नहीं लिखा हो तो आप कस्टम कर सकते हैं, अगर आप इसकी विड्थ खुद ही बढ़ा दें, तो मैंने विड्थ बढ़ानी है तो इस तरह करके आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, और आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। इंश्योर फिट करूँगी और ये देखिए मेरे साइज, इसका स्लाइड का साइज चेंज हो जाता है। आप इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे जी पोर्ट्रेट में चाहिए, ये लैंडस्केप में है, तो मैं इसको पोर्ट्रेट भी कर सकती हूँ ऐसे करके। यहाँ पर देखें पोर्ट्रेट में आ गया। तो अगर आपने साइंटिफिक पोस्टर वगैरह बनाना होता है तो आप वो बना लेते हैं, और जो कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी इमेज यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। आप इजीली आराम से यूज़ करो, जितनी अपनी तस्वीरें आपको चाहिए आप यूज़ करें। अगर मैं इसकी वो ओरिएंटेशन चेंज करना, अब मैंने पोर्ट्रेट में ले आई हूँ, तो फिर मैं इसको ऐसे करूँगी। और फिर आपने इसको सेव कैसे करना है, इसको सेव करके ना इसकी स्लाइड को, गूगल की ऑनलाइन टूल्स होते हैं, उससे आप अपनी स्लाइड को, उसमें होता है कन्वर्ट पीपीटी टू इमेज पीएनजी, तो आप पीएनजी के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑनलाइन टूल्स के साथ, या पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, जिस तरह जो भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल होते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा ग्रुप का एक ऑप्शन होता है। अगर मैं कहती हूँ कि ये मैंने सिलेक्ट कर लिया ना, इसको मैं क्या करूँगी, देखें, मुझे इनको ग्रुप करना है, ठीक है। कंट्रोल को दबा के इनको भी दबाया, राइट क्लिक किया, ग्रुप का ऑप्शन आता है, ग्रुप, इसको दबाया, इसको दबाया, ग्रुप। अब ये देखें ये पूरा ग्रुप हो गया, ये मैंने 2 दफा कर दिया। एक्सक्यूज मी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, जी जी, नहीं हम डिपार्टमेंट नहीं आए, हम नहीं आए, वो ऊपर अंधेरा था, मुझे खौफ आ रहा था, मैं नीचे बैठी हूँ, डिपार्टमेंट के नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ जी, मैम इतना अंधेरा था और फिर अच्छा नहीं लगता ना लड़के के साथ बैठी हूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ। Manur, mute your mic. अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर लें, क्योंकि मीटिंग टाइम कम है एंड इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने बायो रेंडर के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो अगर आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप 5 मिनट्स और के अंदर आप पूछ सकते हैं। रियली सॉरी फॉर द डिले। अच्छा, मुझे कॉल आ गई थी मैम की, तो अच्छा, तो मैं बता रही थी कि कंट्रोल को क्लिक करके आप इन सबको क्लिक करें, कंट्रोल को दबाई रखें और ग्रुप पे आ जाएं, ग्रुप से आके इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये ऐसे करके ग्रुप हो जाता है। यार ये क्यों नहीं हो रहा ग्रुप, 1 मिनट है। ये देखें, ग्रुप कर दिया। अब मैं इसको एक साथ मूव कर सकती हूँ, इसको मैं एक साथ छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ये देखें, इसकी एस्पेक्ट रेशो खराब करूंगी, वो एक साथ होगी, ठीक है। तो ये ग्रुप का एक ऑप्शन होता है, इसको फिर आपने अनग्रुप भी कर सकते हो, इसी तरह जाके अनग्रुप कर दें तो ये सारा अलग हो जाएगा। फिर अब ये मैं अलग अलग मूव कर सकती हूँ ऐसे करके। राहिमा जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये वालेकुम पूछना है कि सलाम। अगर हम लोगों ने एक से
एक से ज्यादा स्लाइड्स को कंबाइन करना हो, मतलब एक से ज्यादा स्लाइड्स को कंबाइन करके एक कॉपी स्लाइड करके बनानी पेस्ट हो। करेंगे, कैसे? कॉपी करके पेस्ट करेंगी। जो जो आपको आइटम्स चाहिए ना, उन पे कंट्रोल करके क्लिक करके उनको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, और फिर जिस स्लाइड पे आपने ला के पेस्ट करना है उस पर कंट्रोल वी कर दें, तो वो स्लाइड्स कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा इसी लिंक से। नो क्वेश्चंस? चलें ठीक है। मानूर, ये जो भी मानूर, क्वेश्चन मेरा है अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखा दें, अगर उन्हें ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं करके बता देती हूँ। जैन, आप ऐसे करो, एक अपनी मीटिंग जनरेट करो और उसका जो लिंक है ना वो इस चैट में सेंड कर दो। मेरा इंटरनेट नहीं है और मैं ओके बाहर हूँ, ठीक है? ओके ओके। ठीक है। अच्छा, अनीस मुख्तार, आपका क्वेश्चन मानूर खान ने बताया है, एक साइड में कोई लिमिट नहीं होती पिक्चर्स की, आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा मानूर, मैंने आपसे पूछना था कि जब हम कोई फॉर एग्जांपल हम हर स्लाइड के ऊपर ये जिस तरह पूरा बनाते हैं पोस्टर वगैरह, तो इसकी कोई गाइडलाइंस, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हर आर्टिकल जर्नल अपनी अपनी देता है या हाँ, फिर सबकी पोस्टर की सेम अपनी चलती है? डायमेंशन होती है, यूजुअली 4:3 की डायमेंशन होती है, 4 फीट बाय 3 फीट, और उसकी ये स्टैंडर्ड होती है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जहाँ आपने जाना होता है, जिस जो कॉन्फ्रेंस वगैरह, उसने अपनी गाइडलाइंस दी होती हैं, अपने फॉन्ट की भी दी होती हैं, अपने उसकी साइज की भी दी होती हैं उसने। तो ऐसे करना होता है। और जो पोस्टर है वो भी आप पोर्ट्रेट में भी बना सकते हो, लैंडस्केप में भी बना सकते हो, जिस तरह आपको इजी लगता है। और जो जैन ने बात की थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास वो है, स्लाइड है, जो कि मैंने जो है ना इनेबल करो एडिटिंग में इसकी। अच्छा, अब जिस तरह जैन ने बात की थी, ये पूरी एक वैसे मैंने इमेज ही रखी हुई है, ये स्लाइड नहीं है। अगर स्लाइड होती ना मैं भी आप लोगों को कंबाइन करके बता देती, लेकिन अभी मीटिंग का टाइम जा रहा है। आई जस्ट हैव 3 मिनट्स। असल में करना क्या होता है कि आपने इनको सिलेक्ट करोगे, आप इनको, और फिर इनको कॉपी करोगे, और फिर जब जो जिस स्लाइड पे पेस्ट करना है इधर आके आप लोग कंट्रोल वी कर दोगे ना, तो वो पेस्ट हो जाएगा। फिर उस हिसाब से ग्रुप करो, अनग्रुप करो, और अपने वो जो डायमेंशन उनको सेट कर दो। ये करना है। जैन, आप लिंक भेज दो। लास्ट क्वेश्चन मेरा मानूर आपसे ये था कि जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वाला होता है वो हम अपने पेपर को एज एन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक जर्नल के अंदर भेजते हैं, मतलब हम उनको एज अ ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भेज देंगे तो हम उनको अपना थियोरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं भेजेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, जब आपने जर्नल को अपना पेपर सेंड करना होता है, सबसे पहले आप पूरा पेपर नहीं सेंड करते हैं। आपने अपना जो टेक्स्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखा है वो, और अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, ये दो आप उनको सेंड करते हैं, ईमेल करते हैं आप पेपर को, और फिर वो आपका चेक करते हैं, और फिर वो बताते हैं, फिर वो बताते हैं कि एक और क्वेश्चन आया है, वीडियो। अच्छा देखें, आप लोगों ने लिंक पे रजिस्टर किया है ना, तो उस लिंक के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग मानोर, जी जी। मैंने ना ये मतलब जब मुझे मेल आई थी मुझे लगा ये जूम का लिंक है और ये मतलब आज ही 7 o'clock ओपन होगा, लेकिन जब मैंने 7 o'clock ओपन किया तो वो फॉर्म था, लेकिन मैंने उसे अभी फिल किया, मुझे वहां पे लिंक नहीं आया था। तो रजिस्टर में अच्छा, हो गई हूँ ना? हाँ हाँ, रजिस्टर हो गई। जब ये हो जाएगी मीटिंग में, कल जाके, कल तक आप लोग रजिस्टर कर लो फॉर्म के ऊपर, तो जो आप लोगों ने ठीक ईमेल्स है, दी होती हैं उसके ऊपर मैं कर। ठीक है, ओके। मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया, आप उस पे आ जाएगी ना इसकी रिकॉर्डिंग? जी जी, आ जाएगी आ जाएगी। ओके, थैंक यू।
जो सेकंड मीटिंग का लिंक है इसके बाद वो भी आपको अभी जो ईमेल आई है उसकी एक्सटेंशन में ही मिलेगा, या जो लोग ग्रुप के अंदर एडिट हैं उन लोगों को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि मीटिंग एंड होने लगी है तो आप डायरेक्ट दोबारा वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा ईमेल से। मैं आप लोगों को चैट में देखती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो मैं चैट में भेज देती हूँ लिंक। इसी यहाँ पे ही भेज रहे हैं आप? हाँ मैं भेज देती हूँ। चलें ठीक है। लिंक मैंने भेज दिया, कॉपी कर लें इससे पहले मीटिंग खत्म हो जाए, ठीक है। वैसे हम जिन ईमेल और वो जो ग्रुप्स हैं उसमें भी सेंड कर देंगे, लेकिन जो लोग इस मीटिंग में हैं इस लिंक को कॉपी कर लें, मीटिंग खत्म होने वाली है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अपना एंड पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई सजेशंस वगैरह हो वो भी दीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तारीफ़ कर दीजिएगा ताकि मतलब इंकरेजमेंट मिलती है। इस तरह की मज़ीद हम वर्कशॉप्स कराते रहेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों ने किसी चीज़ के ऊपर वर्कशॉप करवानी है तो उसका भी ज़रूर बताइएगा। प्लेजरिज्म के ऊपर हमने करानी थी वर्कशॉप, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो मैं मना कर रहे थे कि मतलब ओके, तो बेसिक पर्पस यही था हमारा वर्कशॉप करवाने का कि हम जो है वो हमारे जो जूनियर्स भाई बहन हैं उनको हम सिखा सकें किस तरह से आपने परसू करना है अपनी आपको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, रिव्यू पेपर मिलते हैं आपको बनाने के लिए, तो उनमें अक्सर रिक्वायरमेंट आ जाती है आपको टीचर्स की तरफ से कि आपने जो है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट भी साथ डालना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें हमारे टीचर्स ने ही बताए हुए हैं कि उनको यूज़ करके हम जो है वो हाई रेजोल्यूशन जो है वो बायोलॉजिकल डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्रीज और फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो महानूर खान ने आपको बता दिया कि पावर पॉइंट के थ्रू हम किस तरह से जो है वो ग्राफिकल इफेक्ट बना सकते हैं। वो था एक मतलब अगर आपके पास इंटरनेट अवेल नहीं है एट द मोमेंट तो आप जो है वो पावर पॉइंट पे सिंपली जो है वो डायग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू गाइस हैव इंटरनेट एक्सेस तो आप लोग क्या करते हैं कि बायोरेंडर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके पास क्या होता है कि गैलरी के अंदर उसकी सबसे ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिकल वेक्टर्स लाइक न्यूरॉन, एपिथेलियल सेल्स, माइटोसिस, मियोसिस वगैरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड पुट इट ऑन योर वर्क एरिया। आप लोगों को क्या करना होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर्स पड़े होते हैं, आप लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट करके उसको अपनी मर्जी का कलर दे के उसको वर्क एरिया पुट कर देना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे 37 ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप लोगों के पास जिन लोगों के पास अभी इस वक्त लैपटॉप है तो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि वो अपना लैपटॉप ओपन करके साथ साथ जो है वो बायोरेंडर प्रैक्टिस करें। अदरवाइज इट्स अप टू यू गाइस। जी जी Sir, I have a request. Before starting the lecture, sir, kindly please थोड़ा स्लो बोलिएगा, क्यों ताकि हम लोग भी साथ साथ स्टेप फॉलो कर सकें, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा ही एक लेक्चर लिया था और उसमें सर बहुत तेज बोल रहे थे तो वो बिल्कुल ही कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे हम लोग, और एक पॉइंट पे मैंने भी छोड़ दिया था कि ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बहुत फास्ट हो गया हुआ है। चलिए ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से पूरी। आपको कोई चीज़ ना समझ लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप जो है वो जिन जिन के पास लैपटॉप अवेलेबल है वो साथ ही बायोरेंडर जो है वो खोल लें, ठीक है। तो कोई भी मैं स्टेप करूंगा तो मैं मतलब आपको समझा दूंगा साथ साथ, तो इंशाल्लाह स्पीड जो है ठीक है, वो थैंक स्लो यू। कर लेता हूँ। ओके, तो ओके सर। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे। स्क्रीन शेयर नजर आ रही है सबको? यस। ओके, सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सिंपली बायोरेंडर टाइप करना है
आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा बायोरेंडर का। तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है इस पे। जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो वो साइन अप कर लें। मैं आप लोगों को 2-3 मिनट का टाइम दूंगा। आप लोगों ने यहाँ पे जाके सिंपली जो है वो साइन अप पे अपने इंफॉर्मेशन डाल के तो साइन अप कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके साइन इन कर लूँगा। Okay, I am waiting for you guys for sign up. जब आप लोग साइन अप कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू कर दूँगा। सर यहाँ पे लैब नेम मांग रहे हैं। कुछ भी लिख दें, ओके। चुगताई लैब डाल दें आप। अच्छा, ये एरियाज ऑफ रिसर्च के अंदर जैन हम क्या डालें, मतलब नेम डालें या क्या करें इसमें? सेकेंडरी रिसर्चर्स एंड प्राइमरी एरिया। आप जो है वो इसमें सिंपल लिख दें कि आप जो है वो किसी लैब में इंटर्नशिप कर रहे हैं या कुछ भी टॉपिक लिख दें यहाँ पे। वो कुछ ऐसा मतलब कोई इतना प्रोटोकॉल नहीं मांगते आपसे। आप सिंपली बस लिख दें कि आप जो है वो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप किसी भी बैक्टीरिया का नाम लिख के उस पर रिसर्च कर लिखते हैं आप। साइन अप कर लिया है। ओके, गुड। हाँ जी, साइन अप हो गया है, लेकिन हमारा इंटरफेस काफ़ी डिफरेंट शो हो रहा है यहाँ पे। कुछ वो मांग रहे हैं आपसे, पैकेज वगैरह का पूछ रहे हैं, बेसिक पैकेज, प्रीमियम वगैरह? नहीं, वो तो सारा हो गया है, वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक सो आपने इलस्ट्रेशंस पहले बनाई हुई है ना, तो वो आपके पास वो शो हो रही है। हमारा तो बिल्कुल ब्लैंक ही है अभी फिलहाल। जी, तो ये बस होम ऐसे ही पेज, है। ये बेसिक होम हाँ पेज जी, ये होम है। पेज। यहाँ पे आपके हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी डन विद साइन अप? आप लोगों में से कितने लोगों ने साइन अप कर लिया हुआ है? हम सब तो ज्वाइंट हैं।
हैंड रेज कर दें जिन्होंने साइन अप किया है बायोरेंडर के ऊपर। बायोरेंडर एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसको हम इलस्ट्रेशंस के लिए यूज करते हैं, तो उसका साइन अप बिल्कुल फ्री है। आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के ईमेल से उसको साइन अप कर सकते हैं ताकि देन उसके ऊपर हमें वर्कशॉप दे सकें और हम साथ साथ उसको परफॉर्म कर सकें। मैंने तो काइंडली आप फर्स्ट वाली क्लास लेट ज्वाइन की थी, मुझे नहीं आइडिया है मतलब ये साइन अप कैसे ये करना है। अभी ये सेशन 2 है। आप बायोरेंडर पर जाओ अपने गूगल के ऊपर और उसके बाद आप उसमें साइन अप फॉर फ्री करके आप अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल के साथ उस पर साइन अप कर दें। आगे हमारी जो स्पीकर है मिस्टर जैन, वो आपको आगे गाइड करते जाएंगे। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ 4000 5000 ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ origignal ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ डिस्प्ले ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जैन आप अपना माइक म्यूट कर दें। नेहा आस्कर maybe you should mute your mic. मेरा माइक म्यूट ही आई है। डोंट नो कौन बोल रहा है, पता नहीं। ओके मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोगों ने कर लिया हुआ साइन अप, तो आई गेस वी शुड स्टार्ट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले कि आपके पास एक एडोब इलस्ट्रेटर का मिनी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जितनी भी बायोलॉजिकल डायग्राम्स हैं ना, वो आप यहाँ से बना सकते हैं। लाइक इसमें ऑलरेडी जो वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप वगैरह, सेल है, कोई भी जो ब्लड का सेल है, कोई भी न्यूरॉन है, एपिथेलियल सेल है, सब के सब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। आपने जब उसको ड्रैग करके अपने वर्क एरिया पुट करके अपने लिहाज से उसे अलाइन करना होता है, ठीक है। तो इसको जब आप साइन अप करते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि आप लोगों मतलब आप इसका प्रीमियम पैकेज बाय करना चाहते हैं या फिर आप इसको मतलब फ्री यूज़ करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने हरगिज़ पैसे नहीं खर्च करने। मैं जहाँ एक तरह से आपको यहाँ सिखाऊंगा कि आप लोगों ने डायग्राम किस तरह बनानी है, वहाँ पे ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट, और साथ साथ आपको इसका एक ह्यूरिस्टिक मेथड भी बताऊंगा जिससे आप जो है वो हाई रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं अपनी मर्जी की। तो आप लोगों ने वो प्रीमियम पे पैसे खर्च नहीं करने, सिंपल बेसिक प्लान जो है वो सेलेक्ट करके तो इस पे आ जाएं इसके इंटरफेस पे। तो इसका जो बेसिक प्लान है वो हमें 5 फिगर्स ड्राइंग ना ऑफर करता है एट अ टाइम। मतलब आप एक अकाउंट से 5 डायग्राम जो हैं वो बना सकते हैं। यू कैन सी हियर लिखा हुआ है यू कैन क्रिएट अप टू 5 फिगर्स ऑन दी बायोरेंडर बेसिक प्लान। तो मेरे पास ये देखें कि इलस्ट्रेशन में यहाँ पे मैं हूँ, तो यहाँ पे 5 जो है वो इलस्ट्रेशन शो हो रही हैं जो मैंने ऑलरेडी ड्रा की हुई हैं। तो अगर फर्ज करेंगे 5 की 5 फिलअप हो जाती हैं, ठीक है। और इस वाली को मैं चाहता हूँ कि ये इससे मेरा काम हो गया है, तो मैं सिंपली इस पे सिलेक्ट जाकर अच्छा सर, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या एकेडमिक फिल करना है? यूएमटी का नाम लिख दें, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें। ओके। गोसिया मेरीन, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे इसकी समझ नहीं आई। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो फ्री, हाँ जी, आप ये बता रहे हैं कि हम 5 डायग्राम्स जो हैं वो यहाँ से बना सकते हैं, तो क्या ये हर टाइम हम लॉग इन करेंगे तो इस तरह हो पाएगा या ये सिर्फ एक दफा ही हो पाएगा? नहीं, आपने एक अकाउंट बना लिया अपनी ईमेल आईडी से, उस ईमेल से उस अकाउंट से आप 5 डायग्राम बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका बता रहा हूँ कि आप अगर फर्ज करें आपको ये डायग्राम नहीं चाहिए, आप इस पे कोई नए डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो है वो कंट्रोल ए करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी मैंने वेक्टर्स ऐड किए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये सारे का सारा जो मेरे पास वर्क स्पेस है वो खाली हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दूंगा इस पे ड्राइंग करना। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इस पे जो आप पावर पॉइंट पे करते हैं ना, कंट्रोल एस बार बार सेव करना पड़ता है आपको, यहाँ पे वो नहीं है। हर सेकंड बाद जैसे ही आपको इसमें चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपली यहाँ पे मोस्टली जो है वो बायोलॉजिस्ट हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तो मैं उसको एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पे आइकन्स पे जा क्लिक करेंगे आप तो आपके पास सेल टाइप्स आ जाएगी। सेल टाइप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, जेनेटिक सेल है, ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। इसमें फर्दर आगे जाके आपको जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके वो मिल जाएंगे।
तो आपने फर्ज करें मैं ये वाला जो वेक्टर है इसे ऐड करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, ड्रैग करके इसे मैं अपने वर्क स्टेशन पे ले आऊंगा, ठीक है। इसका साइज एडजस्ट करके इसका मैं जो हूँ वो कलर भी अपनी मर्जी से रख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑलरेडी जो है वो वेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर फर्ज करें आपने आपको आप टाइम बचाने के लिए आप जो है सिंपली यहाँ पे सर्च करने के एंटीबॉडी आपको चाहिए, ठीक है। आप एंटीबॉडी पर सर्च करें तो यहाँ पे एंटीबॉडीज आ जाएंगी, ठीक है। इफ यू गाइस आर फेमिलियर विद एंटीबॉडी, तो आप सर्चिंग टूल यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं रादर देन सर्चिंग फाइंडिंग। तो ये एंटीबॉडी मेरे पास आ गई है। अगर मतलब कोई और चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो आ जाएं, तो सर्च करने से ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब चीज़ें आ जाएंगी। सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट, यू कैन आल्सो चेंज कलर ऑफ योर ओन डिज़ायर। इसके अलावा हमारे पास यहाँ टेम्पलेट्स का सेक्शन है, ठीक है। ये एक अलग कहानी है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट बनाए हुए हैं साइंटिफिक रिसर्चर्स ने, तो वो टेम्पलेट जो है वो उनको यूज़ करके भी आप जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको एंड में दोबारा बता दूंगा। इसके अलावा कुछ ब्रश पोर्शन है यहाँ पे, ये प्रीमियम यूजर्स के लिए जो मतलब पे करते हैं सॉफ्टवेयर को, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फेवरेट का पार्ट है, लाइक ये मेरे पास एक फेज है। अब कोई भी वेक्टर आपके पास आया है, आप उसको एज ए फेवरेट सेलेक्ट करके उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास ये चीज़ मैंने यूज़ करनी है दोबारा, तो मैं इसको फेवरेट कर लूँगा सिलेक्ट, तो ये यहाँ पे इस सेक्शन में आ जाएगी। तो आप सर्चिंग करने के बजाय आप डायरेक्टली जो है फेवरेट वाले पोर्शन में जाके इसको ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने कोई भी डायग्राम जो है वो फर्ज करें कि आपने कोई कोरोना वायरस फर्ज करें, कोरोना, इसके भी यहाँ पे इलस्ट्रेशंस हैं। आप फर्ज कर लें कोई ऐसी चीज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है जो कि इसमें नहीं आ रही, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप सिंपली जिस तरह महमूद खान ने आपको बताया कि आप यहाँ पे जाके आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है, फर्ज करें मैं ये जो पिक्चर है एज एन एग्जांपल जो है वो अपने इलस्ट्रेटर में ऐड करना चाहता हूँ ब्लेंडर पे, ठीक है। तो मैं सिंपली इस पिक्चर को कॉपी करूँगा और ब्लेंडर पे जाके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख दें EM, और ये आपके इस अपलोड सेक्शन में आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो पिक्चर्स हैं, जो आपको कोई वेक्टर है जो आपको यहाँ पे ब्लेंडर पे नहीं मिलता बाय चांस, तो आप वो उसको गूगल से सर्च करके जस्ट लाइक पावर पॉइंट उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो अपलोड के सेक्शन में ये सब आ जाएंगे। लाइक मैंने ये सब ऑलरेडी डायग्राम जो है वो यहाँ पे पुट की हुई हैं मैंने अपने यूज़ के लिए, तो यहाँ से जो है वो आप ये अपलोड वाला सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक टीम का पोर्शन है यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे चीज़ अपलोड करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके साथ भी शेयर होगी, और वो आपके जो दोस्त हैं जिनके साथ आपने टीम बनाया हुआ है, जिनको आप लोगों ने अपनी टीम में ऐड किया हुआ है, उनको भी ये चीज़ शो हो जाएगी। इसके बाद है PDB। PDB स्टैंड फॉर प्रोटीन डाटाबेस, ठीक है। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि 5, 6, 7 स्पेशलिस्ट के लोग बच्चे जो हैं उन्हें पता होगा, लेकिन इस चीज़ को भी मैं आपको एंड पे समझा दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक इलस्ट्रेशन, हाउ इट वर्क्स। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है आपके पास, जस्ट लाइक पावर पॉइंट के इस एरिया पे आपने वर्क करना होता है, इस एरिया पे आपने अपनी वर्किंग करनी होती है। यहाँ से अपने आइकन उठाने होते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके उनको अलाइन करना होता है अपनी मर्जी के मुताबिक। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मैं आपको जो हो डीएनए एप्लीकेशन समझाऊंगा, मतलब उसको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से बाइंडर यूज़ करते हुए एक डीएनए एप्लीकेशन का जो होता है प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डीएनए एप्लीकेशन की जो डायग्राम है ना एज ए रेफरेंस वो यूज़ करूँगा, ताकि साथ साथ जो है वो आप लोगों को भी पता चल जाए इस चीज़ का।
मैं इस पिक्चर को फर्ज करें कि आपके टीचर ने आपको जो कहा हुआ है कि वो आप डीएनए एप्लीकेशन पे जो है वो ग्राफिकल वेबसाइट बना के लाएं, ठीक है। तो डीएनए एप्लीकेशन जो है वो एक कॉमन सा प्रोसेस है, आप सब लोग उससे फेमिलियर होंगे, तो आप लोगों ने उसे एज ए रेफरेंस लेके डायग्राम को तो उससे मतलब उसे रिट्रेस कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये मेरे पास पिक्चर आ गई, मैं इसको यहाँ पे साइड पे ले जाऊँगा ताकि यहाँ से देख के मैं अपने जो वेक्टर्स हैं यहाँ से ऐड करके इस एरिया में पुट कर सकूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है क्या कि सिंपली एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एक डीएनए का मतलब एक डीएनए का पोर्शन है वो आगे से डिवाइड होके 2 स्ट्रैंड में डिवाइड हो रहा है और वहाँ से न्यू स्ट्रैंड डीएनए के बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे अगर डीएनए लिखूँ डीएनए, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीएनए की फॉर्म्स आ जाती हैं। लाइक मेरे पास एक सिंपल स्टैंडर्ड डीएनए का, ठीक है, ये एक मतलब जूम व्यू है उसका, जूम्ड, और इसके अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए भी होते हैं, वो भी यहाँ पे आ गए हैं। तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप लोग, आपका जो काम है वो किससे है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमें पता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो डीएनए जो है वो आगे जाके 2 स्ट्रैंड में डिवाइड होता है। तो सिंपली मैं अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन लिख दूँ तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट और कोइंसाइड आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए आप, तो डीएनए रेप्लिकेशन का ही वो वेक्टर पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। मैंने सिंपली सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते हुए मैंने ड्रैग करके यहाँ पे इसे ले आया हूँ, तो यहाँ मेरे पास इसका आइकन आ गया, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ परफॉर्म करें। जी सर, ट्राई कर रहे हैं साथ साथ ही। यस सर। स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी? नहीं सर, समझ आ रही है। ओके, तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है यहाँ से मैंने मतलब डीएनए का पोर्शन जो पिक करके मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब इसका जो साइज़ है वो आप लोगों पे है, आप कितना इसका चाहते हैं उसको यहाँ पे साइड से ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एक डीएनए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो इसका कलर जो है वो कोई और हो, तो यहाँ से जो मैं कलर भी इसका डिसाइड कर सकता हूँ। ये आ गया डीएनए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एरो आ रही है इसकी रेप्लिकेशन फोक की तरफ, जो पॉइंट आउट कर रही है कि ये कंटिन्यूस रेप्लिकेशन है, ठीक है, इसकी कंटिन्यूस स्ट्रैंड है। तो अब मैं यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है, अगर कुछ मैं लिखना है तो मैं इंसर्ट टेक्स्ट पे जाऊँगा। कोई शेप ऐड करनी है लाइक सर्कल, पेंटागोन, हेक्सागोन, कोई ट्राइंगल ऐड करनी है तो यहाँ से होंगी, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट लाइन है, इसमें क्या है कि कुछ अगर आपने स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है, स्पाइरल शेप लाइन ऐड करनी है, तो ये सारी लाइंस यहाँ पे ऐड होंगी, ठीक है। एरोज, आप एरोज पे आ जाएं। एरोज में क्या है कि सिंगल साइडेड एरोज, डबल साइडेड एरोज, ठीक है, और तमाम तरह की जो एरोज है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद इनहिबिटर्स हैं, डॉट्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, सर्कुलर हैं, ब्रैकेट्स एंड कस्टम। कस्टम में क्या है कि आप अपनी मर्जी से जो अपनी मर्जी का जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक ये देखिए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी मर्जी से इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करना है कि एक एरो ऐड करनी है जो कि रेप्लिकेशन फोक की तरफ पॉइंट कर रही है। ये मैसेज, ओके सर, पिक्चर ड्रैग करना रिपीट कर दें गूगल से बैंडर पे, ओके। ये बहुत इजी काम है, एक आप लोगों ने जाना है गूगल पे, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन लिखना है अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपको चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर डीएनए रेप्लिकेशन ले रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करें ये पिक्चर जो है वो मुझे सूट की है, मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ। सिंपली इस पिक्चर पे राइट क्लिक करके इस पिक्चर को कॉपी करें, ठीक है, वापस आ जाए बाय रेंडर पे, ठीक है। इस पे ही कंट्रोल वी करें, जिस तरह आप करते हैं अपने पावर पॉइंट पे, वर्ड पे कंट्रोल वी से पेस्ट। तो यहाँ पे आपने इसे कोई भी नाम दे के अपलोड करें तो यहाँ पे आ जाएगी, और साथ में ये अपलोड्स वाले पोर्शन में भी ऐड हो जाएगी, यू कैन सी हियर, ठीक है। आगे समझ आपको याज खान, ठीक है। तो इस पिक्चर को एज ए मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है।
मुझे चाहिए एक एरो जो कि रेप्लिकेशन फोक की तरफ पॉइंट कर रही हो। अब अपनी मर्जी से यहाँ से एरो ले सकता हूँ। मैंने क्या किया कि सिंपली जो है वो एरो पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अभी सैरो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसकी जो विड्थ है, लाइन की जो चौड़ाई है, वो भी आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जी आयशा अर्शद, यू रेज योर हैंड, एनी क्वेश्चन? ओके, सो यहाँ पे मेरे पास डायग्राम आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ इसके नीचे जो है वो कंटिन्यूज जो है मैं लिख सकूँ, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, इंसर्ट टेक्स्ट पे जाएं। ये टेक्स्ट आगे लिखा है 14 पॉइंट क्या है कि उसकी जो वो साइज है उसका वो बता रहा है आपको, ठीक है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करें राइट, तो यहाँ पे कंटिन्यूज मैं लिख देता हूँ। इस कंटिन्यू जो लिखा है मैंने, इसको आप कंट्रोल ए करके बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसका साइज कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके अलावा इसे इटैलिक भी कर सकते हैं, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप जो हो कोई टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड है। तो उसके लिए भी सिंपली मैं जाऊँगा इंसर्ट टेक्स्ट पे, यहाँ पे रख के क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 एंड थोड़ा टाइम बचाएं, इसी को ही कॉपी करें और पेस्ट कर दें इसे इसके दूसरे एंड पे ड्रैग करके। That's how you can save your time. Bold. इसका जो यूज़ करने का स्टाइल है वो सेम पावर पॉइंट की तरह है। अगर आप लोग फेमिलियर हैं उससे ज़्यादातर, तो जिस तरह आप उसे यूज़ करते हैं ना, लाइक क्लिक कर रहे हैं जहाँ आप कंट्रोल सी कर रहे हैं, कंट्रोल कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल कर रहे हैं, तो उसी तरह ही मतलब आप इस पे भी कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कंटिन्यूस वाला जो सेक्शन है वो बन गया है। इसके बाद आता है यहाँ पे डिसकंटिन्यूस। इसमें 3 एरोज हैं और उनकी डायरेक्शन जो है वो 5 to 3 है। तो इसके लिए भी सिंपली मैं जिस तरह मैंने एक ही एरो ऐड किया उसी तरह ही मैं 2-3 एरो अपनी मर्जी से ऐड कर लूँगा। एरो सेक्शन में जाके सेक्शन एरो पे क्लिक करें और उसे यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद इसे ही कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें, तो आपके पास 2 एरो ऐड हो जाएंगी। अब इनका जो है वो साइज मेंटेन कर लें। बाय अंडर जो है वो आपको साथ साथ जो है वो एरोज भी बताता है, जहाँ पे जाके मतलब आपकी जो अलाइनमेंट है वो सही हो रही है या नहीं। लाइक मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें लाइंस आ रही हैं, रेड लाइंस, ये बता रही है आपकी अलाइनमेंट कि आपकी जो लाइन है वो पीछे वाली लाइन या आगे वाली लाइन या ऊपर वाली लाइन से बराबर आ रही है या नहीं। रोमा 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट के बाद तो इसका नया लिंक जो है जनरेट कर देंगे हम, जैसे ये मतलब 2-3 मिनट रह जाएंगे ना। ओके, तो इसकी भी आप जो हो विड्थ वगैरह जो है वो चेंज कर दें 7। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये मेरे पास आ गया इसका डिसकंटिन्यूस ट्रेंड। इसका कलर मैं अपनी मर्जी से चेंज कर लेता हूँ।
इसकी डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो सेम हमने जिस तरह पहले किया कि इंसर्ट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे अगर मैंने 5 प्राइम लिखना है तो यहाँ पे बॉक्स अपना प्लेस करके 5 एंड प्राइम, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे डिसकंटिन्यूस स्टैंड भी बन गया इसका। अब इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ से जाके, इट इज discontinuous। You can change its color। ओके, तो हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस जो हैं वो इसके बन चुके हैं। इसके बाद आया था डीएनए अनजिप। अगर आप यहाँ देखें, आपको ये नजर आ रही हो, डीएनए अनजिप लिखा हुआ है कि डीएनए चूंकि अनजिपिंग जो है वो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। तो सिंपली जो मैं इस सेम एज इट इज जो है वो एरो ऐड करूँगा यहाँ से, और उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ कर दूंगा। इसकी विड्थ इंक्रीज कर दूंगा और इसका कलर। अब टेक्स्ट ऐड करना है। ये चीज़ कुछ तीसरी दफ़ा कर रहा हूँ मैं, डीएनए अनजिप। जो लोग साथ साथ कर रहे हैं उन्हें कोई इशू आ रहा है? नो सर, सारा पता लग गया है जितना आपने भी। और कोई जिसे इशू आ रहा हो वो पूछ ले मेरे से। ओके, तो इस तरह से मतलब आप जो है वो अपना डीएनए मतलब रेप्लिकेशन अगर आपको ग्राफिक वेबसाइट मिला हुआ है तो वो बना सकते हैं। ठीक है, ये थी एक सिंपल चीज़, मतलब अगर आपने जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन बनानी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई है, लाइक मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स कुछ ऑलरेडी बने हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको टेम्पलेट्स के पोर्शन भी मिलेंगे। ठीक है, ये वो टेम्पलेट्स हैं जो साइंटिस्ट ने मतलब जो यहाँ पे काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग, उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसकी फ़र्ज़ करें मेरे पास डायग्राम बन गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी आए फाइन रेजोल्यूशन, जो आप कहते हैं कि एचडी पिक्चर आ जाए। अब हमने सर चूंकि क्वेश्चन है। जी सर आपने भी टेम्पलेट का बताया ना, तो मैंने अभी किसी भी रैंडम टेम्पलेट पे क्लिक किया है तो ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस इलस्ट्रेशन और ऐड टू इलस्ट्रेशन। सर इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई पहला इलस्ट्रेटर यूज़ किया हुआ है ना, उसके ऊपर आपने ये ड्रैग करना है या फिर न्यू करना है, तो आप न्यू पे क्लिक करना है, तो वो आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी जी। तो फर्ज करें सर एक मेरे और पास क्वेश्चन था। जी सर आपने बिल्कुल ही शुरू में बताया था कि ये ऐप हमें 5 इलस्ट्रेशंस की चॉइस देती है ना, और हम जी लोग जी फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं जो भी हमें जो सेव करना हो उसमें सेव होता है। तो जी सर जी अगर फर्ज करें हमने नया इलस्ट्रेशन बनाना हो, अपनी नई टेम्पलेट बनानी हो, तो एक रिमूव होगी तो उसकी जगह दूसरी बनेगी? नहीं नहीं, 5 आपको मिलेंगी। आप पांच डिफरेंट जो है आपको एट अ टाइम मिलेंगी। अगर आपके पास 5 की 5 जो है वो ऑक्यूपाई हो गई हैं, उनमें से एक ऐसी है जो आपने यूज नहीं करनी है, आपका उससे काम हो गया है, तो आप उसमें उसको ओपन करके कंट्रोल ए करके बैक स्पेस करेंगी तो वो खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 को जो यूज कर सकते हैं फर्दर मोर भी। लाइक तो फर्ज सर करें वो ये मेरे, परमानेंटली रिमूव हो जाएगी? जी वो परमानेंटली कोई रिमूव हो जाएगी। ऑप्शन नहीं है जो हम लोग सेव कर सकें किसी तरह?
नहीं, आपको उससे कोई पिक्चर ही चाहिए था ना, तो आप लोगों ने ऑलरेडी उसकी पिक्चर सेव कर ली हुई होगी, इसलिए तो आप कह रहे हैं कि मतलब वो फर्दर मोर आपको नहीं चाहिए। आप उसको अपने लैपटॉप में कॉपी कर एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हो, और आप उसको शेयर भी कर सकते हो बायो रेंडर से। तो जब आप ऑलरेडी आपके पास कोई कॉपी या एक्सपोर्टेड फाइल मौजूद है, तो आप इधर सॉफ्टवेयर के ऊपर से उसको रिमूव करके डिलीट कर सकते हो। जी एग्जैक्टली। अब करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं नहीं, इसी तरह ही ओके है, मैं भी मैम, ये थैंक बता यू। रहा हूँ। अब फर्ज करेंगे आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, इलस्ट्रेटर ने आपको ये नहीं चाहिए फर्दर मोर, आप कंट्रोल ए करें तो ये सारे इसमें जो एलिमेंट्स मैंने ऐड किए हैं ये सिलेक्ट हो जाएंगे। बैक स्पेस करेंगे तो ये दोबारा से मतलब वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से आपसे हो गया इस तरह से कंट्रोल जी कर दें तो आपके पास ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। रोमा आप लिंक जनरेट कर देंगी दोबारा से? सर जल्दी से प्लीज सेव करने का भी तरीका एक दफा बता दें। हाँ, मैं लिंक जनरेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं मरवा। अभी इसके बाद दोबारा एक मीटिंग है, उसकी जनरेट करके मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। आप लोग सबको ईमेल के थ्रू मिल गया था लिंक, क्या आपने चैट से लिया था? मैम हमने व्हाट्सएप चैट से लिया था। चलिए ठीक है, आपको व्हाट्सएप की चैट पे, ईमेल पे, और यहाँ पर इस इधर चैट में भी, जूम की मीटिंग की चैट में 2-3 मिनट्स के अंदर मैं लिंक भेज देती हूँ। जी, तो ओके मैम, अभी थैंक यू। तकरीबन 10 मिनट का काम रहता है इसका वेंडर का सिखाने वाला। तो जो सेविंग करनी है, किस तरह से आपने इसकी जो रेजोल्यूशन अच्छी लेनी है, वो मैं आपको अगले 10 मिनट में समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही रोमा आपको जो है वो न्यू लिंक भेजती है, आप उस पर आ जाएं। मैं आपको इसका पीडीबी जो है इसका ये अपलोड के नीचे पीडी वाला सेक्शन समझाता हूँ इसका, और आपने इसकी जो हाई रेजोल्यूशन है वो किस तरह लेनी है वो आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। यहाँ पे आपके पास ऑर्गन्स भी आ रहे हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री के भी कुछ मतलब थोड़ा बहुत टच है इसमें। अमाइनो एसिड्स हैं, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मॉडल किट्स हैं इसमें। कोई एलिमेंट आपको चाहिए कंपाउंड वगैरह तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। हदीका मैम, आपका जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेक्शन में आंसर करता हूँ इसका। एक्सपोर्ट का, आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। आप पे लिमिटेशंस हैं, लाइक यहाँ पे देखें फाइल टाइप, आपको पीएनजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में ये डायग्राम दे सकते हैं, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको इनका पैकेज बाय करना पड़ेगा पैसों का, ठीक है। तो पीएनजी रिकमेंडेड है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए भी आपको इनका प्रीमियम पैकेज बाय करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन की बात आ गई है। यहाँ पे वो सर तो कह रहे हैं सॉरी, कि ये आपने किस तरह ओपन किया? आई एम सॉरी, ये किस तरह ओपन किया? ये एक्सपोर्ट, ये नजर आ रहा है आपको ऊपर, जनरल साइटेशन प्रीव्यू एंड एक्सपोर्ट। जी सर। एक्सपोर्ट पर क्लिक करें तो ये पिक्चर जो है वो इस तरह मतलब ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जी ओके, तो यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट कर लूंगा, फाइल टाइप, रेजोल्यूशन पे आ जाते हैं। रेजोल्यूशन वो कह रहा है कि आपको 72 डीपीआई मिल सकती है, जो कि एक बहुत लो रेजोल्यूशन है। मैं आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा। 150 एंड फॉर 300 डीपीआई आपको उनका प्रीमियम पैकेज बाय करना पड़ेगा। अब मैं इसके 72 डीपीआई को डाउनलोड कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर जो है वो मेरे पास सेव हो गई है। इसको मैं अगर ओपन करूं तो
आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हेलो? नो सर। नो सर, नहीं कोई स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके, वेट। अब शो हो रही है? जी सर, अब शो हो रही है। जी अब हो रही ओके, तो मैंने आपको एक्सपोर्ट कर दी थी पिक्चर वो, तो वो मेरे यहाँ डाउनलोड्स वाले सेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। अब फिर नहीं शो हो रही होगी, ये पता नहीं क्या इशू है। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन। अब आई डोंट नो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, लेकिन जो पिक्चर यहाँ पे मेरे पास आएगी ना, उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होगी, वो पिक्चर जो है वो ब्लरी होगी। आप लोग कंसीडर कर लें कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम आई है, ठीक है। अगर आप अपने पास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैन, आपने ना जी वो मेरे ख्याल में फुल स्क्रीन को शेयर नहीं किया हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है एक समझ गए मिनट, ना, इसका भी वो कर पूरी हाँ, पूरी स्क्रीन को शेयर करो। एक मिनट। एक दफा शेयरिंग को बंद करो, बंद करने के बाद क्या हो करो? गया। हो गया। अब ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला इंटरफेस डाउनलोड सेक्शन? नो सर। यस आ रहा है। हाँ ओके, ज़हन आ रहा है। तो ये थी वो पिक्चर जो मैंने वहां से डाउनलोड की है अभी। और इसमें जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे आपको अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पे काफी जो है ब्लरीनेस शो हो रही है। यहाँ पे देखें, काफी ज्यादा जो है वो ब्लरीनेस शो हो रही है। पिक्चर की जो डीपीआई खास नहीं है, ठीक है। तो जर्नल्स में जब आपने पब्लिकेशंस करनी होती हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो पिक्चर है, एक तो उसकी सोर्स फाइल होनी चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसकी जो रेजोल्यूशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजोल्यूशन है जो हमें इसने दी है वो इतनी खास नहीं है। तो इसका जो है वो एक ह्यूरिस्टिक मेथड है मेरे पास, जिससे क्या है कि आप जो है अपनी रेजोल्यूशन जो है वो फाइन ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपने, आपको स्क्रीन शो हो रही है दोबारा? जी सर, अब हो रही है। ओके, यहाँ पे इसका ना जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है ब्लेंडर का अपना। अगर आपका जो डायग्राम है वो इतनी मतलब कि बड़ी नहीं है, छोटी सी डायग्राम है, जितना मैंने आपको अभी डिनर एप्लीकेशन बताई, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली बाइंडर का जो अपना पॉजिटिव ये जूम इन और जूम इन आउट वाला ऑप्शन है, उसके हिसाब से इसे एडजस्ट करके इसकी स्निपिंग कर लें। फर्ज करें मुझे ये सिर्फ ये चीज चाहिए थी इसमें से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो स्निपिंग है वो यूज करके स्निपिंग टूल यूज करके तो इतनी जो डायग्राम है इसको स्निपिंग कर लूंगा, जूम इन के लिहाज से अपनी जितनी स्क्रीन पे फिट आ जाए, ठीक है। तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो और मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फर्ज करें कि ये जो डायग्राम है सारी की सारी मुझे चाहिए, और मैंने आपको दिखाया कि इसकी जो रेजोल्यूशन मुझे दी है बायोरेंडर ने वो इतनी खास नहीं थी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक मिनट जरा, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इसका अपना है ना गूगल क्रोम का अपना जूम इन जूम आउट है, उस पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे क्लिक करें अगर आप ये वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो गूगल क्रोम का अपना जो जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन है वो आ जाएगा, ठीक है। इस पे जाके आपने क्या करना है कि जूम आउट कर देना आपने करते जाना जब तक आपके पास -25 या -20 तक आ ना जाए। अब ये देखिए मेरे पास -25 तक आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करें कि इसका जो बायोरेंडर का अपना जूम इन है उसमें जाके जूम इन कर लें इसे। समझ लग रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, तो सबसे पहले क्या किया कि जो गूगल क्रोम का अपना जूम इन जूम आउट है वहां पे जाके आपने जूम आउट किया -25 तक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि बायोरेंडर का जो अपना है जूम इन जूम आउट वहां पे जाके आपने जूम इन करना है। आप इसे जूम इन करते हैं जब तक इसकी जो डायग्राम है वो आपके अकॉर्डिंगली इसकी स्क्रीन पे फिट ना हो जाए।
यहाँ तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हो ये अप एंड डाउन वाले छोटे छोटे वो हैं टूल्स हैं जहाँ से डायग्राम जो है वो अप एंड डाउन होती है, ये भी थोड़े छोटे हो गए होंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी नज़र लड़ानी होगी, ठीक है। इसको सेट करके यहाँ पे दरमियान में और ये रहा। इस तरह से आपने जो पिक्चर है वो सेंट्रलाइज कर लेनी है, ठीक है। एक ये नीचे होता है इसका टूल जहाँ से आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं डायग्राम को, और एक यहाँ पे होता है जिससे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो वाटर मार्क है ये चीज़ ना आए, जो आपने डायग्राम यहाँ पर डाउनलोड की थी ना ये वाली, इसमें वाटर मार्क आ रहा होगा, देखना जी, ये देखें ये वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वाटर मार्क ना आए, तो उसके लिए एक तो होगा कि ये जो स्निपिंग आप करते हैं ये कर लें, ठीक है। उसके साथ साथ फाइनल रेजोल्यूशन। तो इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये पिक्चर पे स्क्रीन पे सेंट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके जो डायग्राम है मेरी यहाँ तक हो, इसका जो वो है ना वाटर मार्क वो ना आए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली स्निपिंग टूल पे दोबारा जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपनी स्निपिंग, और इस वाटर मार्क जो है इससे ऊपर ऊपर रहने दूँ। आपने वाटर मार्क तो नहीं देना, इससे ऊपर ऊपर रहना है, और कोशिश करनी है कि आपका जो आपने जो ग्राफिकल वेबसाइट बनाया है, इस पे इलस्ट्रेशन की है, वो वाटर मार्क से ऊपर ऊपर रहे, ताकि आप जो स्निपिंग है वो अच्छी कर सकें। यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूंगा। तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये मेरे पास पिक्चर सेव हो गया, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। सर आपने जब पहली दफा स्निपिंग टूल इस्तेमाल करके स्निप अपना एक लिया था, तो आपने दोबारा इंसर्ट किया था यहाँ पे टेम्पलेट में? किस चीज को? सर किस चीज आपने की बात फर्स्ट करिए आप? टाइम जब स्निपिंग टूल इस्तेमाल की थी फर्स्ट टाइम ना, तो आपने दोबारा क्या यहाँ पे अपलोड हेलो, किया था अपना स्निप? आप किस चीज की बात? हेलो सर, आज देखिए ना जो डायग्राम आप हमें दिखा रहे थे अभी, है ना, तो आपने हमें उसके साथ ही सिखाया ना कि हमने स्निपिंग टूल किस तरह इस्तेमाल करनी है। स्निपिंग किया। तो सर हम लोग स्निपिंग टूल लास्ट टाइम, ये हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा जब हम लोग अपनी बिल्कुल टेम्पलेट तैयार कर चुके होंगे वाटरमार्क रिमूव करने के लिए। हाँ मरवे, सॉरी, जब आप बना लोगे तो उस वक्त एंड पे आपने उसको आप सेव करोगे। एक्सपोर्ट करने से पहले आप, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होती है वो हम बेसिक पैकेज के अंदर थोड़ी कम रेजोल्यूशन में होती है, तो मिस्टर जैन ने आपको ऑल्टरनेटिव तरीका बताया था कि आप उसको स्निपिंग टूल से सेव कर लो, उससे आपका बायोमार्क भी रिमूव हो जाएगा, रेजोल्यूशन भी बेटर हो जाएगी। तो वो उसका वे वो आपको बता रहे थे। तो ऑब्वियसली जब आप पूरा काम कर लोगे तो वो एंड पे ही आप एक्सपोर्ट करोगे। जो उससे पहले स्निपिंग का उन्होंने बताया था, वो उन्होंने ये बताया था कि आप स्निप करके गूगल से इमेज ला सकते हो या कॉपी करके गूगल से इमेज लेकर आ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू, समझ आ गई। अच्छा रोमा, दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करना जरा, मैंने फाइन रेजोल्यूशन दिखानी है एंड वाली, आपने डिसेबल की हुई है स्क्रीन शेयरिंग। कर लो शेयर आप जैन। ओके, अच्छा जी, तो स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, अब अगर इसे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे अगर देखिए आप, तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर मार्क भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है इसका हेरिस्टिक मेथड, जिससे आप जो है वो अपनी मर्जी की फाइन रेजोल्यूशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है वो आपका वाटर मार्क भी रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आप अपनी जो है वो बायोरेंडर पे काम करना, रजिस्ट्रेशन करें, एंड पे जाके जो है वो फाइन रिजल्ट के साथ अपनी पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि आप इस चीज़ से, इस काम से
इलस्ट्रेटर से आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं। आप लोगों को फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फाइवर है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, अपवर्क वगैरह, आप उन पे अपना अकाउंट बना के अपना एक जो है वो गिग बना सकते हैं, अपनी निश बना सकते हैं, जिसमें आप लिख दें कि आई विल मेक यू बायोलॉजिकल डायग्राम्स एंड ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट्स एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस। तो वहाँ पे अक्सर जो क्लाइंट्स आते हैं उनको चाहिए होते हैं कि उनके लिए कोई बायोलॉजिकल डायग्राम बना के दे, तो आप उनके लिए ऑर्डर प्लेस करवाएं उनसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके फ्री काम करें और उनको जो है उनका काम डिलीवर कर दें, तो इस तरह से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय पार्ट। अगर किसी चीज़ अभी किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। फ्रीलांसिंग वाला दोबारा बता दें। अच्छा, फ्रीलांसिंग मैं दोबारा बता रहा था आपको कि अगर आप चाहते हैं कि इससे आप पैसे कमाएं तो आप पैसे भी इससे कमा सकते हैं। लाइक आपके पास एक वेबसाइट है फाइवर, ठीक है, और एक है अपवर्क, इसके अलावा कुछ और भी हैं, guru.com, जहाँ पे जो है वो इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आपने क्या करना होता है कि आप अपना वहाँ पे जाके अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी गिग बनाते हैं वहाँ पे, और गिग की जो निश है, मतलब टॉपिक है आपका, वो ये रखते हैं आप कि आप जो है वो लोगों को बायोलॉजिकल डायग्राम बना के देंगे इस तरह की, ठीक है, सैम्पल पिक्चर्स ऐड करते हैं। तो कोई भी क्लाइंट है जिसकी ज़रूरत होगी, जिसको आपकी जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव लगेगी, वो आपके पास आएगा, अपना ऑर्डर प्लेस करवा देगा कि आप जो है मुझे इस तरह की डीएनए रेप्लिकेशन की या कोई भी जो डायग्राम है वो मुझे बना के दे। तो आप उसको इस टूल के जरिए बनाकर फाइन रेजोल्यूशन के साथ डिलीवर करें, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। फर्दर मोर जो है वो इस अर्निंग का जो मैंने बताया फ्रीलांसिंग का, इसमें भी हम वर्कशॉप रखेंगे एंड पे जाके, तो आपको उससे काफ़ी ब्रीफ जो है वो डिटेल मिल जाएगी इस काम की इन्फॉर्मेशन। जैन, मैंने आपसे कहना था कि एक आप मुझे प्लीज़ काइंडली होस्ट दोबारा बना दें, एंड अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ जैन से पूछ लें ताकि वो आपको बता दें कोई और चीज़, फिर हम मीटिंग को फिर मैं मीटिंग को कंक्लूड कर दूं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एड्रेस कर दूं। Excuse me, ma'am. हाँ जी, पूछो रिजवान। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मैंने सेशन लेट ज्वाइन किया था, काइंडली आप उसको इसके रिगार्डिंग हमें हमारे साथ शेयर कर दें। हाँ जी, मैं ये वाले इस चीज़ से रिलेटेड आपको एंड पे बताती हूँ सेशन के एंड पे। अगर अभी फिलहाल बायो रेंडर से रिलेटेड किसका भी क्वेश्चन है तो वो काइंडली जैन से पूछ लें। ये किसी का क्वेश्चन आया कि हमें ये वीडियो रिसीव नहीं होती, तो अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, पहला सेशन दिया था आपको बैंडर का इंट्रोडक्शन, उसकी जो वीडियो है वो मेरे पास आ गई है, लेकिन बाद में इंटरप्शन आई इसकी लिंक की, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया हूँ। मेरे पास तो इसकी है रिकॉर्डिंग। आपने जहाँ दरमियान से जब शुरू किया था ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दी थी। तो ये मैं यही बात एड्रेस करने लगी थी। आई होप सो पहले तो सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया हमारी वर्कशॉप को, और अगर आप लोग अपना अच्छा फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमारे यूएमटी के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज है हमारी सोसाइटी का, यूएमटी बायोवर्स और बायोवर्स यूएमटी, तो उसके ऊपर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। उसके अलावा आपको अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप लोग हमारे लिंक में, अभी भी बायो के अंदर एक लिंक मौजूद है, हमारे बायो में एक लिंक मौजूद है जिसके अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन थी इस वाली वर्कशॉप की, उसकी अंदर रिक्वायरमेंट है व्हाट्सएप नंबर की। तो आइदर आप वो उसको फिल कर दें या आप इंस्टाग्राम पे ही डायरेक्ट मैसेज में मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दें। अगर आप लोगों को लिंक्स नहीं रिसीव हो रहे तो भी आप उस बायो वाले जो लिंक है उस पर लिखें, क्योंकि उसमें आपकी ईमेल आ जाती है। आज भी जितने लोगों ने रजिस्टर किया था, आपकी ईमेल, उसके उन ईमेल्स के थ्रू आप सबको लिंक भेज दिया था। तो अगर किसी ने अभी भी नहीं किया तो आप लोग एक दफ़ा वहाँ जाकर उसको रजिस्टर करें, आपकी ईमेल वहाँ आ जाएगी। उस ईमेल पर जितने भी रिस्पॉन्डर्स होंगे उन सबको इस मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, आप लोग इसके बाद हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर जाएं, उधर अपना सपोर्ट भी शो करें। आप हमें डायरेक्ट मैसेजेस में फीडबैक दे सकते हैं। कोई जो वर्कशॉप्स आप चाहते हैं आप उनका बता सकते हैं। कोई सजेशन है आपके पास, आप उस सजेशन को भी दे सकते हैं।
एंड यहाँ चैट में किसी ने कहा कि आपको सर्टिफाइड चाहिए वर्कशॉप्स, तो फिर सर्टिफाइड वर्कशॉप्स के लिए जो हमारे पर्सनल स्पीकर्स और स्पीकर्स हैं वो तो पेड होती हैं, तो आप फिर पेमेंट करने के लिए तैयार हो अगर आपको सर्टिफाइड वर्कशॉप्स चाहिए तो वो तो टफ हो जाता है। ये तो हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो एक्सपीरियंस्ड रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अपनी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं ताकि सारों को इस चीज़ से थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का करें। अगर आपको इस चीज़ सजेशन मिलता है फिर हम आपके लिए पेड वर्कशॉप्स भी ले आएंगे जिनके अंदर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम का पेज है UMT Bioverse @UMP Bioverse। उसके ऊपर आप DM कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने बारे में सजेशंस दे सकते हैं एंड उस पर डिफरेंट पोल्स एंड क्वेश्चन बॉक्सेस भी लगते रहते हैं उसकी स्टोरीज के अंदर, तो आप उससे बता सकते हैं। एंड अगेन सेइंग इस मीटिंग का लिंक उन सारे रिस्पॉन्डर्स को मिल जाएगा जो कि बायो के थ्रू रजिस्टर हुए थे, जो बायो में लिंक था। अभी भी अगर आप लोगों ने नहीं किया आप अभी रजिस्टर कर दें, कल शाम को सारे के सारे लिंक्स ईमेल होंगे, तो कल 6 o'clock तक आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आपको उसके अंदर से सारे के सारे मीटिंग के लिंक्स विद पासवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है जी जैन। और दूसरा ये जो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं तो हमने कुछ स्पीकर से ऑलरेडी बात की हुई है, तो इंशाल्लाह हम इस पे भी मतलब डिस्कस करेंगे। टीचर्स हमने स्पीकर्स की बात कर ली, अरेंज कर ली हमें। जैसे ही हमें कुछ टाइम मिलता है, आप लोगों के भी सेमेस्टर जो है वो पीक पे हैं, हमें भी काम मिला होता है तो हमें टाइम निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही हमें कोई टाइम मिलता है तो हम स्पीकर्स अरेंज करके, स्पीकर्स ऑलमोस्ट अरेंज हुए पड़े हैं, बस उनको यस का साइन देना कि आप प्रेजेंट कर दें। तो कुछ टॉपिक्स भी हमारे पास आ गए हैं तो हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जो भी स्पीकर ऑलमोस्ट जो स्पीकर्स हम अपने टीचर्स के थ्रू लेके आते हैं, अपने रेफरेंस से लेके आते हैं, वो तो चार्ज नहीं करते, लेकिन अगर हम कोई आउटसोर्सिंग से बंदा आता है ना तो वो चार्ज करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है सबसे पहले कि 70 to 80% चांसेस यही कि जितनी भी हम वर्कशॉप करवाएंगे वो फ्री होंगी, ठीक है। इन केस अगर कोई आती भी है पेड तो हम उससे या तो नहीं करेंगे स्पॉन्सर, या अगर वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इंफॉर्मेटिव हुई तो हम उसे ला सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में या उससे अगले मंथ में हम इंशाल्लाह कोई ना कोई स्पीकर बुला के आपको एंटरटेन कर देंगे उससे, ठीक है। वो एक्चुअली सर्टिफिकेट्स का कह रहे थे कि हम वर्कशॉप्स ले रहे हैं तो हम इसके सर्टिफिकेट्स भी दें, तो वो उससे रिलेटेड मैं कह रही थी कि जब हमारे पास दूसरे प्रोफेशनल स्पीकर्स आएंगे जो पेड होते हैं या जो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोफेसर्स होते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आपको लाजमी मिल जाएंगे अगर आप लोग उसको ज्वाइन करें। वैसे भी ऑन कैंपस हो तो उसके होते हैं मोस्टली पेड के अंदर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो पेड सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होती हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इस वजह से इसके अंदर आपकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है थ्रू लिंक, और आपकी जो भी वीडियो जो प्रेजेंस होती है वर्चुअल, तो ये इसके अंदर सर्टिफिकेट्स थोड़े मुश्किल होते हैं देने क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे पास उनका ट्रैक नहीं होता कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, बिलोंग करते हैं या नहीं। जब इंशाल्लाह ऑन कैंपस सेमिनार हॉल्स के अंदर और हमारे ऑडिटोरियम के अंदर जब होगी हमारी जो वर्कशॉप्स, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंगली आपको एंटरटेन भी किया जाएगा। एंड दिस वाज ऑल। आई वाज योर होस्ट Ruhma Tahir. I am also a part of UMT Bioverse Society. Mr. Zain was the general secretary of our UMT Bioverse Society, and Mahnur Khan was the president, which was our first speaker. She told us about PowerPoint, and Zain told us about BioRender. Both are the tools which are used to do graphic illustrations and to enhance some of your presentations or lectures or posters. So yeah, thank you. The meeting will end in 10 minutes, and I am going to end the meeting. I hope you all like this session. For further suggestions, you can follow our page at UMT Bioverse, and we are open to all of your suggestions. And Zunaira, आपने कुछ कहना है? Ji, obviously, thank you so much. It was very informative session, and we are really grateful to you people, all the speakers. We know that there's very hectic routine and assignments, projects के अंदर आप जो है वो अपना इतना टाइम निकाल के हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो we are very grateful to you for this. Thank you so much, Zunaira, for your feedback.